کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں آج نگران وزیر اعظم کا تقرر کیا گیا ہے؟ یہ انوار الحق کاکڑ صاحب ان کا نام ہے۔ پاکستان میں نگران وزیر اعظم کا جو تعین کیا جاتا ہے، جو تعیناتی کی جاتی ہے، یہ وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن کے مشاورت سے ہوتا ہے، اور اگر ان کی مشاورت میں کسی ایک نام پہ اتفاق نہ ہو تو آگے ایک پروسیس ہے، لیکن یہ اتفاق ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم انوار الحق کاکڑ صاحب کے اوپر آئیں، ان کی شخصیت کو ڈسکس کریں، یا یہ جو معاملہ ہے ان کی تعیناتی کیوں، کیسے، کس طرح سے ہوئی، اس طرف جائیں اور آگے کیا کیا ہوگا، مجھے ایک مختصر سے سوال کا جواب آپ سے چاہیے ہوگا کہ آپ بھی صحافی ہیں، ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، کیا آپ یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہی دو صاحبان نے تعیناتی کی ہے، یعنی وزیر اعظم شہباز شریف نے اور لیڈر آف دا اپوزیشن راجہ ریاض نے؟ جی نوران صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج وقت نکالا اور مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیے، جب انوار الحق کاکڑ صاحب کی بات ہم کرتے ہیں تو نیچرلی یہ فطرتاً ہمارے ذہن میں کچھ اور لوگ آتے ہیں، یہاں سیاسی لوگ نہیں آتے ہمارے ذہن میں، کیونکہ انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ بلوچستان میں، ان کا تعلق بلوچستان کے نئے سیف اللہ ڈسٹرکٹ سے ہے، آپ بلوچستان میں کسی سے بھی انوار الحق کاکڑ صاحب کے متعلق پوچھیں، یا آپ زحمت نہ کریں پوچھنے کی، انوار الحق کاکڑ صاحب کے ویڈیوز دیکھیں، سینیٹ کے تقاریر دیکھیں، اس کے جتنے بھی جہاں بھی پولیٹیکل ٹاک شوز میں انہوں نے ان کو جب مدعو کیا گیا، تو جب جی بھی بالکل۔ انہوں نے بلوچستان کے متعلق بات کی ہے یا سیکیورٹی کے متعلق بات کی ہے، تو آپ ان کی باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا پولیٹیکل اپروچ رکھتے ہیں، ان کی کیا۔ جی، جو مجھے سمجھ آیا، جو میں دیکھتا چلا رہا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیا کہ وہ سب ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی ایک جو سوچ ہے پاکستان کے اندر، ایک ادارے کی جو سوچ ہے، فوج کے ادارے کی جو سوچ ہے، وہ اس کے ترجمان کے طور پہ آئی ایس پی آر کا ایک سویلین فیس نظر آتے ہیں ہمیں۔ یہ بات درست ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے سوال کے جواب میں کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف اور راجہ ریاض، جو کہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، سیاستدان ہیں، ان کی طرف سے یہ تجویز آئی ہوگی یا انہیں کسی نے کہا ہوگا؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ بالکل میں یہ نہیں، بلکہ آپ میرے خیال سے پاکستان میں یا خاص طور پر بلوچستان میں کسی سے بھی پوچھ لیں کہ یہ نام آیا، وہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر جو تھے شہباز شریف صاحب نے تجویز کی ہے یا نہیں، وہ آپ کو انسٹنٹلی بغیر سوچے، آپ نے تو مجھے کوشچن کیا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں، وہ بغیر سوچے آپ کو کہے گا کہ یہ نام راولپنڈی سے آیا ہے۔ یہ بالکل یہ تعیناتی میاں بالکل صاحب اور اپوزیشن لیڈر نے بالکل نہیں کی ٹھیک، ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ عدالتوں سے جس طرح کے فیصلے پچھلے چند سالوں سے آ رہے ہیں، تو لگتا یوں ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ بیچارے ججز جو جس طرح کی آبزرویشن دے رہے ہوتے ہیں یا جس طرح سے کیسز سن رہے ہوتے ہیں، تو ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے الٹیمیٹلی فیصلہ کیا سنانا ہے۔ بالکل آخری لمحوں میں ججز کو، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو فیصلہ بتایا جاتا ہے۔ پہلے تو ججز ہی اپنے رکھے جاتے ہیں، ایک ہی طرح کے، ایک ہی مائنڈ سیٹ رکھنے والے ججز جو بینچز میں بیٹھتے ہیں اور خاص طرح کے کیسز سنتے ہیں، لیکن اب تو ان بیچاروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی فیصلہ کیا سنانا ہے، اور اداروں کی تباہ حالی کا جو موجودہ صورتحال ہے، یقیناً جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ بات بھی شہباز شریف جیسے ایک سیزنڈ اور پرانے پولیٹیشین اور راجہ ریاض جیسے پولیٹیشین جنہوں نے اپیرنٹلی لیڈر آف اپوزیشن کا کردار ادا کیا، ایک مذاق تھا جمہوریت سے، یہ بھی اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے، لیکن وہ نام بھی ان دونوں کی طرف سے نہیں آیا، یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کچھ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب بھی ذرا آئیے گا، میں آپ کو زحمت اس لیے دی، ریکویسٹ اس لیے کی کہ آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، آپ نے ٹویٹس کیے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب کے بارے میں کافی سارے، تو میں آپ سے کچھ جو آپ نے ٹویٹس کیے ہیں ان کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ مجھے جنرلی ان کی شخصیت، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا خاندانی پس منظر اور ان کے سیاست میں آنے کے بارے میں مختصراً بتائیے گا، پھر میں آپ کے الزامات کے اوپر آتا ہوں۔ جی دیکھیے، انوار الحق کاکڑ صاحب پرسنلی تو میں کہتا ہوں کہ ہی از اے ویری ویل ایجوکیٹڈ پرسن، ہی از ویری آرٹیکولیٹڈ، بہت سمارٹ شخصیت کے مالک ہیں، لیکن انٹلیکچولی وہ ابھی پاکستانی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ از این انٹلیکچوئل، دیر از نو ڈاؤٹ، انڈاؤٹڈلی ہی از این انٹلیکچوئل، لیکن انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ انٹلیکچولی ایک ڈس آنیسٹ پرسن ہے، اور ہم بلوچستان میں جب بھی بات کرتے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب ہوں، باقی اس کے جو دوسرے تیسرے جو الائز ہیں، دوست ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کاکڑ صاحب جو ہیں
बशमूल दीगर कुछ लोगों के, वो बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बेनिफिशियरी हैं। इन सही। लोगों ने इस कॉन्फ्लिक्ट से फायदा उठाया है। अनवर लक काकड़ साहब प्रोफेशनली मैं आपको बताता चलो एक टीचर थे, स्कूल ठीक है। टीचर थे। किसी को शायद पाकिस्तान में पता नहीं, मेरे आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में लोगों को पता है कि वो एक टीचर थे। उन्होंने पढ़ाया है। आप देखो पढ़ाने वाले लोग तो बहुत ही, लेकिन कौन इस ओहदे पर, इस मनसब पर पहुंचता है कि अनवर लक काकड़ सही। साहब पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। अनवर लक काकड़ साहब इंटरेस्टिंगली अपने जमाने तालिब इल्मी में पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन के एक सरगर्म कारकुन भी रहे हैं। ये नहीं है कि वो सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते थे, वो सियासी शख्सियत के आमिल हैं, लेकिन इन बिटवीन उन्होंने पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स तर्क की और वो बरतानिया मूव हो गए थे। और उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो बरतानिया चले गए तो उन्होंने अपने आप को एक अफगान शो किया कि मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से और वहां पर तालिबानों की कब्जा है, और उसने रिफ्यूजी ली। लेकिन ताहम अनवर साहब और उसके दोस्त इन चीजों की तरदीद करते हैं। वो 2000 के बाद जब 1999 में मुशर्रफ को हुई, मुशर्रफ ने जब वो किया को नाफिज के मुल्क पे, तो इसके बाद काकड़ साहब पाकिस्तान आए और 2006 में उन्होंने अपनी सियासत का बाकायदा तौर पर आगाज सरीना होटल क्वेटा से किया, और वहां से उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग का PMLQ ज्वाइन की 2006 में। जी हाँ। और 2008 में जी 2008 में फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े क्वेटा से, हल्का 259 NA से। तो इलेक्शन ये जीत गए थे? जी नहीं, वो नहीं जीते थे, बहुत बुरी तरह से आ रहे थे। नहीं किया था इनको। सही जी। वो एक बात आपको बताता चलूं, अपनी बात मुकम्मल करने से पहले एक चीज मुझे ये जरूर बता दीजिए कि ये 2008 में आपने बताया इलेक्शन लड़े, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, बाद में कोई इलेक्शन लड़े और जीते, कभी अवाम ने मुंतखब भी किया इनको? यही मैं अर्ज करना चाह रहा था कि काकड़ साहब बाज़ात खुद उन्होंने कभी, वो एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे नहीं है। उन्होंने इलेक्शन लड़ा 2008 में, वो हार गए पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से, और इसके बाद उनकी वजह शोहरत, अब आते वो इल्जामात की तरफ, उसके बाद उसकी वजह शोहरत बनी बलूचिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने एक पार्टिकुलर जो नैरेटिव है फौज की बलूचिस्तान के मुतालिक, उसको प्रोमोट किया, उसको प्रोपोगेट किया, प्रोमोट की, आगे तशहीर की उसकी। तो दिस इज हाउ ही बिकेम प्रोमिनेंट। इसके बाद उन्हें बलूचिस्तान हुकूमत का तर्जुमान बनाया गया 2015 के आखिर में, जब नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी चीफ मिनिस्टर थे। तो यहाँ से बाकायदा तौर पर ही केम इन द लाइमलाइट, लोगों की नजर में वो आ गए। हाँ सही है, लेकिन देखिए हमारा बाज लोगों से इख्तलाफ होता है, हम बाज लोगों के सियासी सोच या नजरिए से इत्तेफाक नहीं रखते, बाज लोगों से हमारा इख्तलाफ होता है, बात से इख्तलाफ होता है, तो ये चीजें चलती रहती हैं। जो उनकी सोच है काकड़ साहब की, उससे हमें इख्तलाफ है। आपकी बातों से लग रहा है आपको भी है, मुझे भी है, ओपनली मैं बता रहा हूँ इख्तलाफ। लेकिन देखिए बहरहाल उनका ताल्लुक तो बलोचिस्तान से है, वो बलोचिस्तान को एक छोटे सूबे को रिप्रेजेंटेशन तो मिली है फेडरल लेवल पे, ये आप नहीं मानते? देखिए ये वो लोग हैं, ये छोटे सूबे के वो लोग हैं जो बड़े लोगों के लोग हैं। ये ताल्लुक इनका छोटे सूबे से है, लेकिन इनकी वाबस्तगी, उनके कनेक्शन बड़े लोगों से है, जो पाकिस्तान में बड़े लोग, बड़े लोगों से मुराद आपकी फौज है, पाकिस्तान फौजी एस्टेब्लिशमेंट से, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मेरी मुराद वही है, इनका ताल्लुक वहीं से है। आप देखिए ये अलमिया यही है कि दुनिया को दिखाना है कि बलूचिस्तान से हमने एक बंदा इलेक्ट किए, प्राइम मिनिस्टर बनाया है। देखिए मैंने पहले भी अपने एक ट्वीट में नहीं, ये मिसिंग पर्सन जो है, सॉरी आपकी बात फिर काट रहा हूं, जो मिसिंग पर्सन है बलोचिस्तान के, जिन लोगों के साथ वहां पे जुल्म होता है, जो लोग अपने मिसिंग पर्सन को लेके आते हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठाते ये? देखिए अनवर लक काकड़ साहब जो हैं, बलूचिस्तान के जितने भी जेन्युइन इश्यूज हैं, चाहे वो मिसिंग पर्सनस का हो, चाहे वो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन का हो, चाहे वो राइट्स अब्यूजेस का हो, चाहे वो लोगों को लापता करके फिर इनकी मस्कशुदा लाशें फेंकने का हो, कोई भी बलूचिस्तान के जो 3-4 मोटे जेन्युइन मसाइल हम ले लें बलूचों के या पश्तूनों के, तो अनवर लक काकड़ साहब उन इश्यूज को वैलिडेट करते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये इश्यूज एग्जिस्ट करते ही नहीं है। वो फौजी जो बयानिया है उसको प्रोमोट करते हैं, आलमी सतह पर भी, सूबाई सतह पर भी,
नेशनल लेवल पर भी कि तो बलूचिस्तान आपकी में बातों कोई से, मैं आपकी मसाइल बात नहीं है। मदद काट रहा हूँ, जी आपकी बात काट रहा हूँ किया, आपकी बातों से तो यूं लग रहा है कि ये जो तैनाती की गई है, एक तासुर ये उभरा कि जी ये बलोचिस्तान की तरफ से तैनाती हुई, छोटे सूबे को रिप्रेजेंटेशन मिली, मगर आपकी बातों से तो लग रहा है कि ये जो बलोच अवाम के बुनियादी इश्यूज हैं, जो गरीब बलोच अवाम जिसकी वजह से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये तो उनके जख्मों पे नमकबाशी वाली बात है कि एक शख्स जो कि उन लोगों के खिलाफ खड़ा है, जो कि मिसिंग पर्सन को गलत कहता है, जो कि उस इदारे को जिसके ऊपर इल्जाम लगता है, जो हर बात पे उनके मौक़िफ़ को दिफा करता है, ये तो उसकी तैनाती हुई, तो ये तो बलोचियों के साथ मजीद जुल्म हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ये बात मैंने बताई कि अनवर अल्लाह काकड़ हो या बाकी दूसरे तीसरे इसके दो इर्द गिर्द जो लोग घूमते हैं, ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बेनिफिशियरी हैं। ये तो ये चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट चले, ये मसला चले, दो कि वो एग्री नहीं करते कि ऐसा कोई मसला है बलूचिस्तान में। इंटरेस्टिंगली वो एग्री नहीं करते, वो कहते हैं ये कुछ चंद मुट्ठी पर अनासर हैं, मुजाहिमत कर रहे हैं या लोग मिसिंग नहीं है। मैं अभी उनकी कोई वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि 50 लोग मिसिंग है बलूचिस्तान से, लगभग तकरीबन 50 लोग मिसिंग है। तो ये लोग इस तरह प्रोपोगेट करते हैं, इस तरह जो रियल काजेज हैं, जो रियल या जेन्युइन इश्यूज हैं, उनको अंडरमाइन करने के लिए ही उनको प्रोमोट किया जाता है, आगे लाया जाता है। ये बलूचों की ना नुमाइंदगी करते हैं ये साहब, ना पश्तूनों की नुमाइंदगी करते हैं तो पश्तून काकड़ कबीले से उनका ताल्लुक है, लेकिन ये कभी भी इलेक्शन लड़कर मुंतखब नहीं हुए। उन्हें 2015 में फौज ने वजीर आला बलूचिस्तान का तर्जुमान बनाया, फिर बाद में उसको सेनेटर बनाया, अभी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर निगरान प्राइम मिनिस्टर बनाया है। ही डज नॉट रिप्रेजेंट बलूचिस्तान। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज ये है, मैं आपको वैसे अपने नॉलेज की एक बात बताता हूँ, जो कि बलोचिस्तान के एक सेनेटर, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बात आगे चलेगी, लोग उसके ऊपर खुद सवाल उठाएंगे तो उन्हें पता लगेगा, या लोग खुद तहकीक करना चाहें, कि एक सेनेटर है जो कि बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी रहे, तो उनके अपने मुंह की बात है, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उनके मुंह की बात है। और ये बात कब की है कि बलोचिस्तान में एक वाकया हुआ था किया कि किसी रईसानी साहब थे, कोई पता नहीं क्या नाम है उनका, तो उनके घर से कहते हैं बड़े पैसे बरामद हुए थे, करोड़ों रुपए, कहते हैं कि 82 करोड़ या इतने पैसे डाले गए। तो असल कहानी कहते हैं कि ये थी कि नहीं, वो बिलियन में थे, वो 4-5 अरब रुपए थे जो टोटल इकट्ठे किए गए, जो कि 82 करोड़ शायद शो किए गए और बाकी आपस में बांट लिए गए, और मुख्तलिफ लोगों को 5 करोड़ 10 करोड़ दिए गए। तो जिन साहब की मैं बात कर रहा हूं उनको 5 करोड़ मिले, ये वो खुद बता रहे हैं। तो उनके खिलाफ नैब में एक केस बना, तो उनको पूछा गया कि आप तो फलां फलां ताकतवर लोगों के बहुत करीब थे, तो आपके खिलाफ केस क्यों बन गया, क्या मसला बना, और ये क्या मामला चल रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि जी किसी बात पे नाराज हुए, तो उन्होंने कहा जी वो जो 5 करोड़ आपने लिए थे वो वापस करें। ये अब उन सेनेटर साहब के मुंह की बात है, खुद कह रहे हैं। तो हमें 25 करोड़ वापस करें। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो 5 करोड़ लिए थे, आप 25 करोड़ क्यों मांग रहे हैं? तो मैं अगर दूंगा भी सही तो 5 करोड़ दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको 25 देने पड़ेंगे। अब इस बात के ऊपर एक झगड़ा हो गया, बात खराब हो गई और इनके खिलाफ नैब में केस दर्ज हो गया। अब ये हुआ कि कुछ अरसे बाद वो केस खत्म हो गया, तो फिर इनसे दोबारा पूछा गया, और ये बात भी रिकॉर्ड पे है, इन्होंने खुद कहा कि जी केस खत्म हो गया। उन्होंने कहा जी अब मुझे मामला की समझ आ गई, मैंने क्या क्या गलतियां की थी, अब मैं खुल के ओपनली उनके स्पोक्समैन के तौर पे काम करता हूं। ये सेंटर कौन है इसके बारे में लोगों को बहुत जल्द पता लगेगा जब मजीद हकाइक सामने आएंगे। लेकिन नैब में केस के हवाले से मैंने ये देखा कि आपने कुछ ट्वीट भी किया, और मैंने ये देखा कि नैब में एक केस इनके हवाले से भी, अनवारुल्लाह काकड़ साहब के खिलाफ भी ये केस कोई दर्ज हुआ, और कोई आप ट्वीट कर रहे हैं वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से। ये किस्सा क्या है, ये जरा मुख्तसर बताइएगा हमारे देखने वालों को। देखिए, बलूचिस्तान में पिछले 2 दहाइयों से कॉन्फ्लिक्ट जारी है, वहाँ से लोग डिसअपियर किए गए हैं, वहाँ से लोग मारे गए हैं। बलूचों के, पश्तूनों के बहुत जेन्युइन इश्यूज हैं और काफ़ी हद तक सीवियर इश्यूज हैं, लेकिन उन इश्यूज को कंट्रोल अंडरमाइन करने के लिए एक अनवर अल्लाह काकड़ साहब ने 2016 में एक थिंक टैंक टाइप चीज बनाई, उसको नाम दिया वॉइस ऑफ बलूचिस्तान का। जी बिल्कुल। मैंने अनवर अल्लाह काकड़ से खुद पर्सनली भी बात की है इस सिलसिले में। वो कहते हैं कि ये जो एनजीओ बनाने का मकसद था, दरअसल ये मकसद ये था कि जो नौजवान डिसग्रंटल्ड यूथ हैं, नाराज या डिसिडेंट,
हम उनको मेन स्ट्रीम करेंगे, उनको कौमी दहाड़े में शामिल करेंगे। लेकिन ऑन द अदर एंड ये एनजीओ इस तरह हुआ कि अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो फैक्ट जो हम बात करते रहते हैं ना, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर की और इन चीजों की, इसकी बुनियाद अनवर काकड़ साहब ने बलूचिस्तान में रखी। तो ये वॉइस ऑफ बलूचिस्तान का बुनियादी प्राइमरी मिशन या मकसद ये है कि हम बलूचिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज बिल्डिंग करते हैं, एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाते हैं कि बलूचिस्तान में ये है, पिलाना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और बाकी जो मिसिंग पर्सन का इशू है, दूसरे तीसरे इश्यूज हैं, लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, वो फेक हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इन चीजों को। तो ये हुआ कि ये एनजीओ जो है ना सिर्फ काकड़ साहब के लिए बल्कि कुछ और भी का बड़े जो लोग हैं काकड़ साहब को जो उन्होंने इस ओहदे पर लाया है, वो इनके लिए भी ये एनजीओ एक जरिए माश बन गया, सोर्स ऑफ इनकम बन गया। देखिए पैसे कहाँ से आते थे? पैसे देखिए इनकी कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन हमें जराए ने बताया, हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में पूछा, सीएम सेक्रेटरीट से पूछा, तो हमें पता लगा कि ये पैसे सीएम सीक्रेट फंड से आते हैं, जो चीफ मिनिस्टर का खुफिया फंड होता है वहीं से आते हैं। और ये पैसा बराह रास्त काकड़ साहब को मेरे ख्याल से नहीं जाते हैं, ये पहले कोर कमांडर 12 को जाते हैं, वो फिर इसको काकड़ साहब को देते हैं अपनी मर्जी से कि कोर कमांडर कोयटा इसमें ताल्लुक आ गया। कोर कमांडर कोयटा कहां से आ गए बीच में? देखिए ये एनजीओ बनाने का मकसद यही था कि जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है हम उसका एक अलग पिक्चर दिखाएं, एक पॉजिटिव इमेज बलूचिस्तान का दुनिया के सामने पेश करें। और ये आइडिया फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का उन्हीं लोगों का था, और काकड़ साहब उनके फ्रंटमैन थे, उन्होंने बखूबी इस काम को अंजाम दिया। तो इसको बैक इन द बैकयार्ड या बैकग्राउंड में इस एनजीओ को वॉइस ऑफ बलूचिस्तान को चलाने वाले और लोग हैं। आप देखिए ये स्टूडेंट, मैंने काकड़ साहब से पूछा, मैंने कहा यार आप लोग पंजाब से स्टूडेंट लाते हैं, पेशावर से स्टूडेंट लाते हैं, C-130 तैयारों से, बाकायदा पिक्चर्स है इनके वेबसाइट पे मौजूद है। मैंने कहा आप लोग इतना खर्चा करते हैं, सरीना में इनका कयाम करवाते हैं, ग्वादर में पीसी में कयाम करवाते हैं, इवन उनको कराची तक ले गए, तो इतना सारा पैसा, ये आप एक तरफ कंप्लेन करते हैं कि गरीब प्रोविंस है, इसके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, तो फिर ये इतना पैसा आप पंजाब से आए हुए स्टूडेंट पे क्यों खर्च कर रहे हैं? तो कहता है यार आप जरा, काकड़ साहब की अपनी जुबानी है, उसने मुझे खुद कहा, कहता है मेरी इतनी औकात है कि मैं C-130 तैयार से पंजाब से स्टूडेंट लाऊं, ये तो कोई और ला रहा है। मैं तो साफ जाहिर है कि ये एनजीओ चलाने का मकसद क्या था। ये काकड़ साहब की जो अच्छी बातें शायद माननी पड़ेंगी, उनमें एक बात है कि वो बात बता देते हैं, बात कर देते हैं। जी उसने मुझे बताया। असल बात ये है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो एनजीओ है वॉइस ऑफ बलूचिस्तान, अब पता नहीं है एनजीओ है, कोई मैगजीन है, कोई थिंक टैंक है, इट्स नॉट क्लियर, लेकिन बलूचिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। वहां पर देखिए हमारे ऊपर, आम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग होती है, और खास तौर पर एनजीओ जो है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 2019-20 में तकरीबन 3250 एनजीओ के कैंसल लाइसेंस कैंसिल किए। अब आप देखिए बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है, डिप्राइव्ड है, वहां पर स्टेट मशीनरी जो है बिल्कुल नॉन फंक्शनल है, वहां पर इट्स वेरी प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स। आप वहां पर एनजीओ को काम करने नहीं देते हैं। फिर दूसरी तरफ अनवरुल्लाह काकड़ साहब बगैर रजिस्ट्रेशन के, देखिए उन्होंने एनजीओ के लिए इतने सख्त रेगुलेशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान बनाए नेट के तहत, तो 3250 एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल किए। काकड़ साहब 2016 से 2022 तक एक एनजीओ चलाते रहे बलूचिस्तान में, और इनकी सोर्स ऑफ फाइनेंस का पता नहीं है, वो चल रहा था। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो मुतल्लिका इदारा एनजीओ को रजिस्टर करता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा काकड़ साहब को खतूत लिखे, लेटर्स लिखे कि भाई आप अपनी एनजीओ की रजिस्ट्रेशन तो कराएं, आप क्यों नहीं करा रहे? उसने बिल्कुल नहीं किया। वो इस बात पे he was in denial, उन्होंने कहा भाई मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है। जो नैब में मामलात गए थे, वो यही थे इनके या कोई और थे? इनका भी नहीं, नैब में मामला यही था। नैब ने इस बात पे तहकीक की कि भाई आप लोगों का बहुत मुबैना तौर पर हमें पता चला है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इस पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक्चुअली काकड़ साहब का जो एनजीओ है, इट वाज बीइंग रन ऑन कैश, हार्ड कैश मनी। वो उसके एम्प्लॉयज को भी कैश मनी में पेमेंट की जाती थी,
और क्वेटा जी कैंट जी में जी। उनका ऑफिस है, बहुत लग्जरियस दफ्तर वो चलाते हैं। नेब ने मैं इस जी नेब जी ने इसी बिना पे तहकीकी कि आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप लोगों को जी जी 2016 से 20 में कितना पैसा मिला है और कहाँ पे ये पैसा इस्तेमाल हुआ है। जी बिल्कुल। मैं इस मौजू से हट के एक छोटी-सी बात अर्ज़ करूँ और फिर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ और फिर गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। मेरा हमेशा से एक अपने साथियों से इसरार रहा है, शोबे सहाफ़त के साथियों से। हम लोग सहाफ़ी हैं, काम करते हैं, गलत काम भी हो जाता है, सही भी हो जाता है, लेकिन इंसान की नीयत सही होनी चाहिए। मेरा हमेशा से इसरार रहा कि अगर कभी दबाव हो, अगर कभी हालात ख़राब हों और आपको खौफ़ हो किसी ताकतवर का, तो आप ख़ामोश हो जाएँ, आप झूठ ना बोलें। आज के दिन मेरे बहुत से दोस्तों ने और साथियों ने झूठ बोला, जिसका मुझे बड़ा अफ़सोस है। बात सिर्फ़ इतनी सी थी कि अंधे को भी पता है, जैसा कि अंधे को भी पता है कि अनवारुल हक काकड़ एक जाती मुलाजिम है। एक पालतू का लफज या मैं कोई दूसरा जानवर वाला लफज इस्तेमाल करूंगा तो वो लोग गुस्सा करेंगे इस बात का, लेकिन हकीकत है कि जाती मुलाजिम है एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के। एस्टेब्लिशमेंट के साथ नत्थी कोई बंदा या उनके लिए काम करने वाला कोई बंदा अच्छे जहन का भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उसकी अपनी सोच भी हो सकती है, लेकिन वो प्रो थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट हो, लेकिन ये जाती मुलाजमों में आते हैं अनवारुल हक काकड़ जो है। तो सबको पता है। तो मेरे दोस्तों ने क्या जुल्म किया आज कि हर किसी ने हाजिरी लगवाई कि बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छा किया गया, बहुत अच्छे बंदे हैं। बाद लोगों ने तो यहां तक कहा जी एस्टेब्लिशमेंट के हैं लेकिन बंदे बहुत अच्छे हैं। अरे क्या मतलब आपका कि जो शख्स अपने सूबे में होने वाली कत्लो गारत के ऊपर खामोश है और दस्ते कातिल को थामने की बजाय उस कातिल का हमायती बनता है। देखें किया आज हमारे सहाफियों ने उसके हक में बोला है, उसके हक में लिखा है। और एक साहब को तो मैं देख रहा था जिनको मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे सहाफी हैं, लेकिन अफसोस हो रहा है जो वो आजकल कर रहे हैं। उन्होंने जाके किसी खातून पार्लियामेंटेरियन ने लिखा कि जी इनके खिलाफ नैब में ये वाले केस है, तो उन साहब ने जाके लिखा कि जी आप चेक तो कर देती, नैब ने केस भी खत्म कर दिया है। अब हम बतौर सहाफी जानते हैं कि नैब नाम का कोई इदारा नहीं है। FIA या नैब बांदी बनी हुई है एस्टेब्लिशमेंट की, उनके पालतू बन के काम करते हैं बेचारे। अगर उनका हुक्म ना माने तो अपने घरों में ना जा सके। किया मैं और आप ये बात जानते हैं ना। तो देखिए वो सहाफी आके ऊपर लिख रहे हैं कि जी केस खत्म हो गया। केस तो आपको पता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ केस कैसे बने थे, कैसे खत्म हो रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ कैसे केस क्यों बने हैं, कब खत्म होंगे। किसी के खिलाफ नैब का केस क्यों बनता है और क्यों नहीं बनता। अगर हम ये बात बयान नहीं कर सकते तो हम बदबयानत सहाफी हैं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता था अपने देखने वालों को। मैं किया आपसे सवाल करूंगा दोबारा अनवारुल हक काकड़ के मौजू पे आते हुए। ये बताइएगा कि एस्टेब्लिशमेंट इनको लेके आई, तो एस्टेब्लिशमेंट के तो बहुत सारे बंदे थे, इन्हीं को क्यों लेके आई। क्या मकसद हासिल होंगे आपकी नजर में। देखिए अनवर खाकड़ एक कंपेयर टू अदर्स फ्रॉम स्पेशली बलूचिस्तान, इसके दो मकसद हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा मकसद ये है कि दुनिया को दिखाना है, लोगों को दिखाना है कि हम एक प्रोविंस है, डिप्राइव्ड है, उनके लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनको सामने ला रहे हैं। एक सबसे बुनियादी वजह यही है ये करने का। दूसरी वजह ये है कि काकड़ साहब जो है एज आई सेड अर्लियर के, वो एक पढ़े लिखे बंदे ही, वो एक स्मार्ट बंदे ही, वो नॉलेजेबल है, वाइज, इज अ वेरी वाइज एंड आर्टिकुलेटेड पर्सन, लेकिन इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। तो शायद लोगों को देखें, अब बहुत सारे लोगों को, हमारे दोस्तों को, आपके दोस्तों को ये पता नहीं है कि ये इज इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट, अपने लोगों के साथ एक बंदा सिंसियर नहीं है, अपने बिल्कुल लोगों के काज को वो नेगेट कर रहा है, जी तो जी बिल्कुल इज नॉट ऑनेस्ट। लेकिन ये बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जानते हैं। तो यही दो मकासद थे, एक तो कि हमने बलूचिस्तान को रिप्रेजेंटेशन दी है, दूसरी ये कि एक पढ़ा लिखा और बाशऊर बंदा हमने सामने लाया है। तो यही मैं समझता हूँ यही मकसद थे। और एक बात मैं ऐड करूँ, आप नेब का जिक्र कर रहे थे, मैं जी अभी जी थोड़ी देर पहले काकड़ साहब के एक दोस्त से बात कर रहा था। मैंने कहा यार ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए, इनके ऊपर तो नेब के केसेस चल रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि ये जब प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन मिले, अपोजिशन लीडर मिले, तो ये बात डिस्कस हुई है, लेकिन काकड़ साहब को शायद पहले ही बताया गया था कि आपको हम हर ला रहे चीज हैं। में क्लियर इसके करेंगे। नए केसेस जुलाई में बंद किए हैं, जुलाई जी में जी लास्ट मंथ। सही सही तो सही सही। ये सिलसिला है, इस तरह केसेस बनते हैं, इस तरह बंद होते हैं। हाँ, और ये ये जो लिखा जाता है ये भी लिखवाया जाता है कि किसी को नहीं जी पता हाँ, होता तो बताया जाता है कि अपडेट ये है कि केसेस खत्म हो गए हैं, प्लीज ये बात भी लिख दें। और हम कितनी बदयांती का मुजाहरा करते हैं किया कि हम लिख देते हैं।
بجائے سچ لکھنے کے. آپ کو یہ کہنے میں کسی بندے کو کیا آر ہو سکتا ہے؟ آپ تعریف بھی کر دیں لیکن آپ بتائیں تو صحیح کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے سپوکس مین ہیں, یہ جو ظلم بلوچستان میں ہوتا ہے اس کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں, ظلم کے اور ظالم کے ساتھی ہیں. اور ان کے خلاف یہ کیس اگر بنا تھا اور صحیح بنا تھا تو جو ختم کیا گیا وہ اس لیے ختم کیا گیا, لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے لایا گیا یقیناً کیا کہ جس طریقے سے ایگریکلچر فارمنگ کے حوالے سے بہت سے پروگرام چل رہے ہیں, تو اب جو مقاصد حاصل کرنے ہیں فوج نے, ادارے نے, پاکستان کو مزید کمزور کرنے کے لیے اور معاشی ریسورسز پہ میکسیمم اپنی گرپ کو مضبوط کرنے کے لیے, تو اب شہباز شریف سے بھی ایک بہتر بندہ یقیناً لائے گا. جتنا نقصان پاکستان میں نواز شریف صاحب کی اس حکومت جو انہوں نے اپنے بھائی کے ذریعے کی, نون لیگ کی حکومت اٹھایا پاکستان نے اپنی 74 سالہ تاریخ میں شاید نہیں اٹھایا, جتنی گندی کیا کہ لیجسلیشن ہوئی, ہم نے دیکھا کس طریقے سے نوٹوریس جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں, خوفناک ایجنسیز جو ہیں, ان کو اختیارات دیے گئے گرفتار کرنے کے, کس طریقے سے جو ہے وہ قوانین میں آرمی ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی, کس طریقے سے آرمی چیف کو جو ہے ایک وہ ڈکٹیٹر بنا دیا گیا ود ان دا انسٹیٹیوشن آف آرمی. اس انسٹیٹیوشن کی رہی سے ہی کوئی ڈسپلن تھا, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. تو آپ نے ہمیں آج وقت دیا, کیا آپ کا بہت شکریہ. آپ کی وجہ سے ہمیں پتہ لگا کہ جو انوار الحق کاکڑ ہیں یہ بلوچستان کے نمائندے ہرگز نہیں ہیں. ان کی تعیناتی بنیادی طور پہ غریب, معصوم اور بے حال وہ بلوچی جو کہ ظلم و ستم کا شکار ہے, ان کے زخموں پہ نمک چھٹکنے کے مترادف ہے. اور اسٹیبلشمنٹ آپ نے آخر میں بتایا اس لیے لے کے آئی ہے کہ اپنے مقاصد کو بآسانی وہ حل کر سکے گی. یقیناً پاکستان میں جمہوریت مزید کمزور ہوگی اور اپنے کام نکلوانے اور اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر یہ سلسلہ جاری رہے گا. کہ آپ کا بہت شکریہ.